हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. दिस इज़ अंजलि प्रताप एंड वी आर हियर इन आवर सेशन ऑफ इंग्लिश where we will be talking about some of the important topics with respect to your examination. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एस ओ के प्रिपरेशन की, जनरली इन इंग्लिश यू डिवाइड योर इंटायर प्रिपरेशन इन 3 basic modules, everyone. If you have gone through the previous year paper, you might have already realized that what I'm going to say, you people. Okay, so the first section, or you can say the first module through which we can expect our questions to be there in the exam, is grammar. Very well known one. Another one is your comprehension part. Comprehension, as the name itself justifies, understanding. Okay, so basically a paragraph related question or the linking of the sentence should be there. So all such kinds of question which needs a high level of understanding, वैसे क्वेश्चन हम कॉम्प्रीहेंशन में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द थर्ड मॉड्यूल फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इज वोकैबुलरी. नाउ वोकैबुलरी इज ऑल्सो सीन क्वाइट इन अप ट्रेंड in terms of the different patterns of questions, everybody. आगे जाकर हमारे इन सेशंस में हम वोकैब के भी ऊपर जो है ना क्वेश्चंस जैसे कि वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूसेज, फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे. If we talk about today's particular session, we are going to start with the very first module, and that too a very like short topic आपका मैंने आज pick किया है, and that is error spotting question. Now error spotting is one such topic I think most of the aspirants are aware of, but what we are not aware of is the different patterns through which these questions can be asked. But again, everyone, if you are very much aware with your basics of each and every topic, if you have gone through the topic wise practice part in like from your end, तो ये पैटर्न कैसे भी आ जाए, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू एक्चुअली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. वो अभी आप विटनेस भी करेंगे मेरे साथ. बट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन करेक्टली, गाइज याद रखिएगा, एक्यूरेसी हमारा पहला प्रायोरिटी है. स्पीड डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट, बट आई वोंट सजेस्ट कि स्पीड के चक्कर में आप अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले यहाँ पर. तो आज की सेशन में हम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो बताएंगे ही, बट साथ ही साथ यू शुड ऑल्सो सी द पैटर्न इन विच दीज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. क्योंकि अब वो पुराना पैटर्न लाइक वन सेंटेंस एंड देन दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 or 5 पार्ट्स, और आपको वहाँ जो है ना एरर स्पॉट करना होता है. उसके अलावा भी कुछ ऐसे जो है ना मिक्स एंड मैच टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर बना रहे हैं जो हम एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहला क्वेश्चन का सेट है हमारे पास. दैट सेज देयर आर 2 sentences हियर which are divided into 4 parts, A, B, C and D. Both the sentences may have errors in one of the 4 parts or may not have any error at all. So you have to find out the parts containing error and mark that alternative as the answer. So we have to spot the error, everyone. चलिए start करते हैं. The very first step which we need to follow while solving such question will be what, everyone? पूरा sentence एक साथ पढ़ेंगे. We should not stop like अच्छा A तक पढ़ लिया हमने. Now we are thinking what is the error in A. कुछ भी नहीं मिला then we are moving towards B. No, not at all, everyone. पूरा sentence एक साथ पढ़ेंगे हम. Let's read it together. Amazon said that it has secured an agreement with space launch firm United Launch Alliance ULA to support the deployment of their Project Kuiper satellites. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बात ये है कि ये जो देयर वाला प्रोनाउन आया है ये तो किसी प्लूरल एंटिटी को रेफर करेगा. You all are aware, right? But in this entire sentence, are you able to spot any plural noun? हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की, Amazon की, and the pronoun which has been used in that very sentence is it. तो ये there का तो uses तो गड़बड़ लग रहा है. तो चलिए इसको ठीक करते हैं. The right way to correct this is, हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमें यहाँ पे लगाना है इट्स. सॉरी, हमें यहाँ पे लगाना है इट्स. क्लियर? आई होप आपका भी जो सोच है वो इसी चीज़ पर मर्ज कर रहा हो हमारे साथ. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 2.
Amazon noted that as 500 people are working on the Project Kuiper program, and the team is working on creating new technology to make broadband more affordable and accessible. अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत लग रही है ना? इफ पीपल आर थिंकिंग कि मैम मोर अफोर्डेबल लगाया है तो मोर एक्सेसिबल भी लगा देते हैं, नो, लाइक नो नीड एट ऑल एवरीवन, कोई और चीज़ बीच में नहीं है. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, मोर अफोर्डेबल एंड मोर एक्सेसिबल, दिस मोर हैज़ बिन पुट एज अ कॉमन वन. तो इसकी चिंता आप ना करें कि मोर हमें 2 बार लगानी है. 2 बार लगाने से हमारा सेंटेंस ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा. प्रॉब्लम दिख रही है हमें यहाँ पर. Amazon noted that as 500 people are working on the project. Guys, when we talk about number, approximation हम जब लेते हैं या बताते हैं करीब करीब 500 लोग या 500 लोग से ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये जो प्रिपोजिशन लगाना चाहिए हमें वहाँ ये करेक्ट नहीं है. शायद हम ओवर लगा सकते थे. वी कुड ऑल्सो हैव यूज्ड अबाउट, बट एज कैन नॉट बी अ करेक्ट प्रिपोजिशन टू बी यूज्ड विथ अ नंबर. समझ में आ गया कहाँ का प्रॉब्लम है? हमारा 1 में प्रॉब्लम था, डी में, एंड 2 में प्रॉब्लम है, ए में. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4. हालांकि ये क्वेश्चन आपका सिर्फ ये सॉल्व करने से भी बन जाता, क्योंकि 1 का डी एक ही ऑप्शन में था, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. राइट एवरीवन, आई थॉट कि एक क्वेश्चन हम थोड़ा स्लो सॉल्व करें सो दैट यू नो द वेज इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. ठीक है, चलिए. Let's try question number 2, but let's try to be a bit fast, okay? Question number 2 का first sentence. The center announced guidelines for its employees include staggered office hours and 50% attendance of officers of the level of under secretary and below in view of a surge in COVID-19 cases. Guys, this is a typical question of subject verb agreement, right? बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये इंक्लूड वर्ड तो गलत है. यहाँ पे क्या होना चाहिए? दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस, लाइक सेंटर अनाउंस्ड गाइडलाइंस फॉर इट्स एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग स्टैगर्ड ऑफिस आवर्स. अगर आप इंक्लूडिंग नहीं भी लिखना चाह रहे थे तो आपको कम से कम विच इंक्लूड लिखना चाहिए. एटलीस्ट दिस विल क्रिएट अ लिंक इन माई सेंटेंस. तो इधर वन ऑफ देम कैन बी आवर राइट आंसर. ठीक है, लेट्स ट्राई 2. वैसे क्या हमारा आंसर यहाँ से निकलेगा? 1 का बी में हमें एरर मिल गया है. बस हमारा तो आंसर क्लियर है, कंफर्म है. ठीक है, तो लाइक इफ यू आर सो लकी तो हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा. बट चलिए, अब तो मालूम चल गया 2 के सी में प्रॉब्लम है, बट देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एंड प्रेग्नेंट विमेन एम्प्लॉयज may be exempted by attending office. आप सब जानते हैं exempted एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा फॉलो करता है from को. exempted from यानी छूट मिलेगी किसी चीज से. तो बस आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था. Let's try question number 3 everyone. So you might think कि 2 सेंटेंस है तो क्वेश्चन कैन बी अ बिट डिफिकल्ट, बट देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता है तो these questions will be a cake walk. In a statement, a party said that the president had decided that the prime minister and other central leaders of the party would address only small public meetings and no more to 500 people would be allowed to attend. क्या दिक्कत लग रही है यहाँ पे? डी में कुछ गड़बड़ लग रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हो. No more than 500 people should be correct, because more एक ऐसा word है, एक ऐसी adjective है जो अपने साथ comparative degree लेकर चल रही है कि नहीं? So in order to create proper comparison we need than. तो ये to को हटाना पड़ेगा और than को लगाना पड़ेगा, right? तो 1 का D हमारा wrong है and we have that option here. So most probably answer तो हमारा option number D ही जाएगा. Let's try to read question number 2. क्या दिक्कत है यहाँ पे? The party assertive that it is also very necessary for the constitutional and democratic obligations to be fulfilled, noting that the assembly polls are underway in the state. बहुत clear था कि party assertive that something is missing in this part. And what is that? Verb.
तो पार्टी असर्टिव गड़बड़ लग रहा है और यहाँ दैट है, मतलब हम स्टेट कर रहे हैं, तो वी नीडेड अ वर्ब गाइज. तो असर्टिव ना लगाकर असर्टेड अगर हम लगाते हैं, सो दिस विल बी माई वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड दैट्स हाउ माई सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. तो 2 का ए में प्रॉब्लम है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं एवरीवन. एक और बात मैं बता दूं, आफ्टर दिस इंटायर सेशन टू बी डन, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टिव जो आपका सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन जहाँ पे दिया हुआ रहता है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी. आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो उन क्वेश्चन को. दोज आर बेस्ड ऑन द सेम और सिमिलर पैटर्न्स हियर. ठीक है, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी. Facebook Inclusive said it will launch several audio products on the platform that can help it compete against Clubhouse. कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? क्या कंप्लीट करना है हमें? आगे तो पढ़ने की ज़रूरत लग नहीं रही है, बट चलिए पढ़ लेते हैं. An audio only chatting app that grew popular early this year. तो भाई हम कह रहे हैं ऑडियो प्रोडक्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प इट कम्पीट अगेंस्ट क्लब हाउस. हाँ भाई, लड़ सकता है, कम्पीट कर सकता है, बट कम्पीट क्या करेगा? तो ये वर्ड हमारा करेक्ट होना चाहिए. चलिए देखते हैं. 1 का सी हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है. दैट शुड बी द राइट आंसर गाइस. चलिए 2 का बी में चेक कर लेते हैं क्या एरर है यहाँ पे. पॉडकास्ट आर अ पॉपुलर ऑडियो फॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म with an over 35 million users. Very wrong. मुझे लगता है ज़्यादा आसान तो क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ पे. Let's try next one everybody. क्वेश्चन कहता है हमें, according to information available in the public domain, India lags behind the world average of doses admitted per 1 lakh population. Okay. According to information, because हम information के साथ कोई article नहीं लगाते हैं students, so that's why we don't need an article there. तो problem कहाँ है? Problem हमारा इस word में है. डोज को एडमिट किया जाएगा या डोज को एडमिनिस्टर किया जाएगा? वी विल जस्ट सुपरवाइज दैट पार्ट. पेशेंट्स कैन गेट एडमिटेड एवरीवन, बट डोजेस एडमिट कैसे होगा, है ना? दैट इज नॉट अ पर्सन टू गेट एडमिटेड. तो जो एक्चुअली हमारा करेक्ट वर्ड है वो एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए था, राइट? एडमिनिस्टर्ड करेक्ट वर्ड था, एडमिटेड गलत वर्ड था. तो 1 के लिए डी में हमारा एरर है एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट ईजी फॉर अस टू फिगर आउट दैट डी शुड बी द आंसर. बट चलिए 2 का ए में प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, विच आई थिंक मच ईजियर दैन द क्वेश्चन नंबर 1 गाइज. सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव, एग्जैक्टली. तो बस 2 का ए में भी एरर है हमारा. So don't ever go judge your question basically without reading the question guys. Length देख करके कभी भी हमें ये जज नहीं कर लेना चाहिए that this question is going to be very very difficult, right? क्योंकि अभी तक तो हमने ये वाला थ्योरी जो है ना वो मतलब मिथ मान लिया इसको. चलिए चेक करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन. As Maharashtra's health infrastructure cracks among the onslaught of the second wave of the pandemic, the cabinet requested chief minister to impose a stern lockdown to break the virus chain. प्रॉब्लम ये लग रही है अमंग वाली. अमंग तब लगता है when we have a group to refer, generally when we have a sense of distribution of something. Among the onslaught, चलिए तो गड़बड़ तो यहीं पर है हमारा. 1 का बी में एक प्रॉब्लम दिख रहा है एंड वी हैव एन ऑप्शन एज वेल. चलिए मतलब काफ़ी हद तक 2 के डी में हमको एरर दिखाई देगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. मिनिस्टर्स वर अनैनिमस इन अग्रीइंग. अनैनिमस मतलब बिना किसी विरोध के, नो वन इज अपोजिंग दैट. सो मिनिस्टर्स वर अनैनिमस इन अग्रीइंग दैट द रिस्ट्रिक्शंस imposed by the government a week ago were not having the discovered effect in bringing cases down. Discovered effect या desired effect, मनचाहा effect. Yes, there was a problem in D
our answer is definitely going with option number B, everyone here. So that's it, everybody, from my end on this topic of error spotting. So I think you people understood that this is also a way in which a question can be asked in the examination. Do not forget to refer to the assignment which is provided below this video. उसे attempt कीजिए. If there is any doubt after solving, feel free to ask that in the comment section, everyone. So that's it for today, everyone. Bye bye. Take care. Have a great day ahead.